Hello, my name is Hassan Chaudhary. This is the Week in Review and you're tuned into something hot. आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. आप अपना फीडबैक हमें इसी तरह भेजते रहें और हम अपने एपिसोड्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे. बट इस सबसे पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज इससे आपको हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आएंगी. हाय आमना. Hi Hassan. कैसी हैं आप? It's been a busy week. I know, and we'll discuss our regular dramas that we do, हाँ. but I want to start off by talking about fashion because I know that you went to Lahore for this big event. I did. What was that about? So it was a shop opening. We went for Zainab Shtani's store launch. She's been in Karachi for a while now, and it's great to see designers branch out. And she's opened in Lahore. But there were lots of celebrities present there as well. There were. We met Resham, who's evergreen and looking great as always. And As then, people can see through the picture. Through the pictures, absolutely. And then there was Ikra, who again was, I think, in her element, knowing that she's doing really well, her plays are doing well. So, acha tha. And of course, anything that happens in Lahore, Lahore turns out in all full form. So, it's always good to be in Lahore. But talking about Ikra, Yeah. I know that you're very impressed by her performance in Ranja Ranja Kaddi's last episode, and I we were am. talking about that. And I I know that you also told her how I impressed told you her, are. actually, it's really strange that I bumped into Ikra about 3 times in this trip. And we had little interactions, and I get a really good feeling from her. I mean, she's very talented, there's no doubt about that. But even beyond the screen, she seems like a very nice person, and we will be bringing her in soon and having a longer chat with her. So I'm looking forward to it. But she seemed somebody who was genuinely interested in what she's doing, in refining her craft, and as we said, she's doing a fantastic job in Ranja Ranja Kardi. तो रांझा रांझा करदी की स्टोरी किस मोड़ पे पहुंच गई है अब? So बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ है इन द सेंस कि नूरी जो है वो अपने नए घर में सेटल हो गई है. शी इज़ मैरिड. लास्ट एपिसोड शी फाइंड्स आउट हु शी इज़ मैरिड टू, and that conflict and range of emotions I think was absolutely brilliant. It's not an easy character to portray in the sense that she's this headstrong girl from a very very humble background. Humble क्या, she's मतलब कचरा उठाने वालों की बच्ची है, but she's ambitious and she's emancipated and she's headstrong and she doesn't stop. She has no moral, जो कहते हैं ना एक compass होता है, वो रुकती नहीं है जिस चीज़ के लिए इसको जाना होता है, whatever she wants she goes after. So now she's in this situation. The great thing is that she's making the most of it. She realizes कि यहाँ इसके इस घर में शादी हो गई है, अमीर लोग हैं, the mother-in-law is doting on her, and she is reciprocating, and it's great. But what's interesting will be how her relationship with Bhola develops, because I have a feeling, and I spoke to Ikra about it, and of course she didn't tell me anything, but I think that she will of course develop a soft spot for him. Whether it's going to develop into romance, I really doubt. And 2 things I'm looking forward to. Ek to the development of her character and the relationship with Bhola, and second, the comeback of Sahir. Sahir गया कहीं नहीं है, वो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वापस आएगा. फिर इसके साथ क्या होगा? Because love of her life तो वही है. So, but she's doing great. I think last episode ऐसा था जो पहली दफ़ा मुझे लगा कि इमरान अशरफ की एक्टिंग को इकरा ने सरपास किया है. अच्छा. हाँ, but between Ikra and Imran and Asma Abbas, who's also doing a fantastic job. मतलब एक दिखाई हुई है ना एक टिपिकल पाकिस्तानी माँ जो कि रियलिटी देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे बच्चे में कोई कमी है या खामी है. नहीं, उसको वो बता रही है कि तुम दुल्हन को पहली दफ़ा मिलोगे तो ऐसे बात करना और उसको फूल देना, और it was the cutest scene ever, and I'm so happy that plays like this are happening. आपके रिव्यू और एनालिसिस तो मुझे ये लग रहा है कि सारे अवार्ड्स रांझा रांझा की करदी की टीम लेके जाएगी घर इस अवार्ड सीजन के अभी बाद. तो ले जाने चाहिए, वैसे ले जाने चाहिए, बिकॉज आई मीन मुझे तो हम इतने प्लेस देखते हैं पूरा हफ्ता, बट वेरी फ्यू आर दिस इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग. टॉकिंग अबाउट द अदर प्लेस, Yeah. चीख जो कि हमारा फेवरेट बनता जा रहा है. मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं, हमारे बाकायदा ऑफिस में 1-1 घंटे के सेशन होते हैं रोज टू डिसाइफर एंड फिगर आउट कि ये कत्ल किसने किया है ना आपका. तो ये कुछ समझ नहीं आ रही, वाकई में इतना इंटरेस्टिंग हो गया ये ड्रामा. सो आई एम रियली हैप्पी. शुरू में आपको याद है हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या ये हु डन इट सस्पेंस थ्रिलर रहेगा या पता चल जाएगा और फिर ये सोशल ड्रामा बन जाएगा.
लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आखिर तक ये सस्पेंस रहेगा अगर रहे तो नथिंग लाइक इट। रहेगा बिल्कुल रहेगा कि मारा किसने है। और इस एपिसोड में एक लफ्ज़ है जो कि विच इज़ द पिवट, बताएं। राजा। राजा, एग्जैक्टली राजा का जो लफ्ज़ है, अब राजा कौन है और उसने क्या किया है, दैट इज़ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अच्छा, मुझे लग रहा था कि वो उसके दोस्त का नाम राजा है, बट वो नहीं है, वो नहीं, शारिक उसका है। नाम तो शारिक है। और दो फ्लैशबैक्स होती हैं। एक फ्लैशबैक है जिसमें तीनों दोस्तें बैठी हैं एंड नायाब इज़ अनवेल, और Yeah. वो गा के सुनाती है कि राजा की आएगी बारात, एंड यू नो उसको छेड़ रहे होते हैं वो। हाँ। और सेकंड फ्लैशबैक है जब वजी और शारिक शतरंज खेल रहे होते हैं, हाँ। और उसमें वो कहता है कि एक था राजा, एक थी रानी, हाँ, रानी रानी मर मर गई, ख़त्म कहानी। तो अगर वजी राजा है तो उसकी रानी नायाब है, वो तो मर गई है, तो कहानी तो अब शुरू हुई है। लेकिन तो ये बहुत इंट्रीगिंग है ये। आई Right. थिंक इट्स रियली रियली इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट राइटिंग, बिकॉज दूसरी चीज़ है कि कैरेक्टर्स आर नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता अभी तक, ऑल्दो उन्होंने नेगेटिव अनाउंस किया है कि वजी नेगेटिव है, दिल नहीं मानता ना कि इतना स्वीट सा वजी जो है, ये वैसे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मासूम क्यों सा। अनाउंस किया मेरे है ख्याल है देयर इज कि मोर टू इट। नेगेटिव है और अभी तक हो नहीं रहा सो नेगेटिव। मेरी एक थियरी है। बताएं जी, बताएं। मेरी आपकी थ्योरी तो मेरी एक थियरी है। मेरे ख्याल है कि इस क्राइम में देयर आर मोर देन वन पीपल इन्वॉल्व्ड। तो कल आपने कहा कि सभी इन्वॉल्व है ना। मेरे ख्याल है सब तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन इट्स शारिक और वजी। एक एंड ने, ऑफ कोर्स द ब्रदर यावर। यावर इज कवरिंग फॉर हिज फैमिली, यू आई नो फील। वो जो सीन है जिसमें यावर सेज के कानून की आंखों पर पट्टी तो आप बांध सकते हैं, लेकिन जमीर को आप कैसे कन्विंस करेंगे, या यू कैन गेट अवे विद अ क्राइम, लेकिन अपने आप की जो गिल्ट है आपकी, आप कैसे गिल्ट मारेंगे? गिल्ट कैसे मारेंगे। तो तो वो गिल्ट पॉइंट तो वो देखते हुए वजी को देखते हुए, सो मे बी ही थिंक्स दैट वजी इज डन इट। आपने नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखा है? मैंने देखा नेक्स्ट एपिसोड का। आपने वो पार्ट देखा है जब मन्नत कहती है कि वजी, वो तो मरने से पहले नाम भी तुम्हारा बोल के गई है, हाँ। आखिरी उसके होंठों पे आखिरी नाम तुम्हारा था। लेकिन मेरे ख्याल में वो इस सेंस में कह रही है कि शी रियली लाइक्ड यू। She does, but the expression on his face हाँ। is one of shock. हाँ। You know, it's not that But he she's was taken, sitting, he was there when he was there, but it's not that she's taken his name in necessarily in love. But ये बड़े interesting development है, because nothing is crystal clear. Usually हमारे plays में आपको पहले episode में पता चल जाता है कि आखिरी में क्या होगा. It's just about the journey. यहाँ पे you don't know who the killer लेकिन is. यहाँ पे कुछ मुझे जो उसकी स्लो पेस है वो अब थोड़ी बॉदर कर रही है, क्योंकि एक रात का जो सीक्वेंस है वो 4 एपिसोड्स लग गए उनको ट्रांजिशन करने में। True, that is true. Should be a little मेरे ख्याल है more कि fast. अब पिक करना चाहिए, करना चाहिए pick अब तो। पिक करना चाहिए। अगर उन्होंने पहले रिवील करना है तो कर देना चाहिए अब कि कौन है, और आगे की स्टोरी पे शुरू करें। जी जी और बिल्कुल। अगर एंड तक लेके जाना है तो फिर मेरे ख्याल में एक एक करके अब वो सस्पेक्ट्स को डील करना शुरू कर दें। हसन, एक और कैरेक्टर है जो कि मैं आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ पॉइंट आउट रिगार्डिंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स, कि जो पुलिस वाले का कैरेक्टर है प्लेड बाय नैयर एजाज। नैयर एजाज। अच्छा, जब वो शुरू में दाखिल होते हैं तो मुझे लगता है ये तो ज़रूर कोई करप्ट पुलिस वाला है और एक्सटॉर्शन करेगा, फिर ही टर्न्स आउट टू बी कमिटेड टू द जॉब एंड द टास्क एट हैंड। इस एपिसोड में जो वो हरकत करते हैं कि ब्लैंक पेपर पे नायाब का उन्होंने साइन ले लिया है, शी इज़ नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट, उसने सिर्फ एक बयान दिया है। कहना राजा भेड़िया है, राजा, मन्नत से कहना राजा भेड़िया है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि मरते मरते कि वो नाम भूल जाती है धक्का देने वाले उसकी का। लॉजिक मुझे ऐसी लग रही है कि शी ऑब्वियसली एक बंदा कोमा से निकला है तो उसको क्या पता कि उसको ट्रस्ट कर स्टोरी भी तो आगे लेके जानी है ना। मगर अब प्रोमो में हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं नैयर एजाज कि वो मरने से पहले कातिल का नाम बता गई हैं। हाँ, उन्होंने मन्नत को बोली है। या तो ही इज गोइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यावर, बहुत सारे पैसे, या वो ये उनका एक टैक्टिक है टू गेट टू द ट्रूथ। So there are a lot of things that are very intriguing about the play. So let's see अब नैयर एजाज की परफॉर्मेंस बड़े मजे की है। वो अब हमेशा स्टेलर होती है बिल्कुल। अच्छा, मूविंग बियॉन्ड चीख नाउ, यार ये आंगन का क्या करना है। मुझे तो जो सबसे ज्यादा चीज बॉदर कर रही है इस वक्त, आई वाज आउट फॉर अ डिनर लास्ट नाइट एंड आई मिस द एपिसोड। अब आई हैव नो वे टू वॉच इट, तो अगर ये मिस हो जाए एपिसोड तो आप क्या कर रहे हैं? वैसे आप 11:30 बजे देख सकते थे रात को। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि 11:30 बजे वाला भी ऑप्शन है। यू कुड हैव वॉच्ड इट, रिपीट होता है एक दफ़ा,
नहीं, मेरे अगर ख्याल डिनर में से ही आप 12 12:30 है तो फिर आप क्या नहीं करें? तो ये अब ये प्रॉब्लम हो रही है लोगों को एंड आई थिंक देव लॉस्ट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर अनएबल टू वॉच इट। वो नुकसान हो रहा है। प्लस दूसरी चीज़ है कि हम लोगों की लाइफ्स इतनी बिजी हैं कि 1 घंटा बैठ के एक टिक टिक एपिसोड देखना वो नहीं होता। वो तो टाइम ही नहीं वो रहा। टाइम ही नहीं रहा कि हम लोग बैठ के प्लस एड ब्रेक्स इतने ज़्यादा होते हैं दैट यू डोंट वांट टू सिट डाउन फॉर एन आवर एंड वॉच एन एपिसोड। यूजुअली मैं सब एपिसोड्स यूट्यूब पे देखती हूँ रात को आराम से। मैं आराम से आंगन देख नहीं पा रही। मगर दूसरी चीज़ ये है कि आंगन भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। पहली बात तो ये कि उसकी पॉपुलैरिटी की जो रीज़न थी, एक जो था ना उसका फोकल पॉइंट, वो था चिम्मी, जमील और आलिया का लव ट्रायंगल। वो लव ट्रायंगल जो है वो पूरे एपिसोड में 2-3 मिनट, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन शम्मी और जमील के जो रिलेशनशिप है वो शुरू में वो 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाती है, फिर बाकी एपिसोड पूरा ड्रैग कर रहा है। तो कुछ जो ना हुक बन नहीं रहा। इट्स नॉट समथिंग दैट यू आई वॉच इट बिकॉज हे इट्स आंगन एंड वी वेटेड फॉर इट सो लॉन्ग, सो वी नीड टू सिट डाउन एंड वॉच इट। बट इट्स नॉट लाइक आई एम डाइंग टू वॉच इट कि उफ अब इस हफ्ते आंगन में क्या होगा। ऐसा सीन नहीं है। चीख की तरह कि चीफ यार की कि तरह क्या नहीं होगा, है अब क्या होगा। या रांझा रांझा की तरह नहीं है कि मतलब उसमें लाइफ जो है सज्जल स्क्रीन पे आती हैं तो थोड़ी लाइफ डलती है। ठीक है, तमीना और जो है अपना सफदर। सफदर, उनकी रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग है। उनके बाप का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एंड ही is allowing his daughters to marry, you know, wherever they wish and everything. But the pace of the drama is really slow. Or there are so many characters that it is really tough to keep up with all of them. So, वो जो I think they're having difficulty directing it. डू यू थिंक कि ये एक पीरियड प्लेस का एक टाइम था, एक ज़माना था, वी टॉक अबाउट दास्तान एंड ऑल दीज अदर बिग प्लेस जो who considered class which are considered classics now. तो वो टाइम अब ख़त्म हो गया है कि अब पीरियड एक ड्रामा देखने का टाइम शायद व्यूवर्स के पास भी नहीं है, ना उतनी पेशेंस लेवल है कि यार। No, I don't think it's that. I don't think it's that at all. I think it's just that जब मैं आंगन लगाती हूँ तो मुझे आहद रज़ा मीर और सज्जल को देखना है। तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन, मेरे ख्याल है लोगों की भी यही लोगों है। की लोगों की भी एक्सपेक्टेशन, तो यही लोगों है। की एक्सपेक्टेशन का भी मसला हो सकता है। उन्होंने तो नहीं कमिट किया कि वो आहद या नहीं, उन्होंने किया सज्जल एक्चुअली। का रोमांस ही खाली दिखाएं। नहीं, बट उन्होंने उसको भी बहुत बड़ा वो रखा है। इट वाज अ बिग अट्रैक्शन जो थी ना आंगन की, इट वाज ब्रिंगिंग आहद एंड सज्जल बैक ऑन स्क्रीन। सो आहद एंड सज्जल हैव नॉट कम बैक एज मच एज वी हैड होप्ड टू सी देम। सो वो है। प्लस आलिया का कैरेक्टर भी अभी इंटरमिटेंटली आलिया का कैरेक्टर भी अभी डेवलप हो रहा है। आई मीन एक चीज़ जो मैं लुक फॉरवर्ड टू कर रही हूँ कि वो किस तरह उनका इंटरेक्शन होगा आपस में। बट देयर इज जस्ट टू मच हैपनिंग एंड इट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड it's a bit tedious. वे टू मेनी कैरेक्टर्स। It's a bit tedious. I mean, it's not the. I mean, Dastan is a great example of a really good period play. It's not capturing one's interest the same way, unfortunately. उम्मीदें बहुत थी। So talking about dramas, as you know, मैं अलिफ के सेट पे गया जी। earlier this week and I Absolutely. met Hamza and Sajjal. So without getting into the details, I want people to click on the related videos and you'll see the Hamza interview. Do watch it. It's very interesting. हमजा ने एक बड़ी बातें अलिफ के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं, मौला जट के बारे में भी की हैं जो हम विल बी शेयरिंग सून, और फिर सज्जल का भी एक बड़ा मज़े का इंटरव्यू है जो उनके फैंस को देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहूँगी कि क्या सज्जल और हमजा की जोड़ी, सज्जल और अहद की जोड़ी को सरपास कर पाएगी कि नहीं, ये मज़े की चीज़ होगी। और क्या मावरा और आहद की जोड़ी सज्जल और आहद की जोड़ी को सरपास कर आई पाएगी? डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल। ये तो अब वक्त ही वक्त बताएगा। बताएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। फिलहाल सज्जल और राहत की जोड़ी जो है ना वो बहुत पक्की है। अच्छा, एक फैशन की हम बात कर रहे थे, हमने ज़ैनब चुटानी के इवेंट की तो बात कर ली, बट एक और बड़ा मज़े का इवेंट हुआ जो जहाँ पे आपने बड़ी हाई प्रोफाइल सेल्फीज ली। नहीं, मैंने सेल्फी नहीं ली, मैं आपको भी ये करेक्शन sorry, करना चाहूँगी। pictures. पिक्चर्स थी। Pictures. इट वाज अ फन इवेंट। किडनी सेंटर का एनुअल ब्रंच होता है, फंड रेजिंग, एंड इट्स हाई सोसाइटी इवेंट। लोग तैयार होके आते हैं एंड देयर इज अ नाइस layout and nice brunch and everybody dresses up to the theme. It was a great weather. It was a fun thing. मैं सोच सिर्फ ये रही थी कि वहाँ बिलावल भी थे और फैसल वाडवा भी थे और कुछ एक दो पॉलिटिशियंस और भी थे जो जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस नहीं की, वो पूरे इवेंट पे वहीं थे। तो मैं सोचती कि गवर्नमेंट तो फिर ऐसी चल रही है। ये तो मज़े की बात है कि दे वर देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स।
But what's the concept behind this event? It's a fundraiser and it's for the kidney center. So people buy, the tickets are very expensive. People and corporations buy tables. और वहाँ पे भी raffle चल रहा होता है. आप you can buy tickets and फिर आपका lucky draw निकलता है. So people donate a lot. And of course the question is, and always, and you could term this as the thought of the week, that do we need to spend so much to raise funds? And that is a question that is old and it will continue कि लोग ऐसे ही क्यों नहीं donation दे देते, but जो organizers हैं वो समझते हैं कि you have to give people a little bit to encourage them to sort of, you know, get them together, इकट्ठे होके, then they donate more, all of that. Give them a good time and they'll donate more. ठीक है. And the weekend's really busy, this one. So next week we'll have a lot more to talk we've about. got the Beyond Beautiful gala happening, then we've got the 2-day event happening, then we're shooting our next fashion shoot for Instep, and we've got a really cool character coming in, so you'll be introduced to him as well. So काफ़ी कुछ हो रहा है, it's a busy weekend, और अभी तो fashion आप से संभाला नहीं जाएगा हसन. Fashion week शुरू हो जाएगा एक दफ़ा तो फिर तो it'll just be fashion and वो more मैंने fashion. संभालना भी नहीं है, आप ही ने संभालना है. बट आपने सुन लिया, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं. इन पर्टिकुलर आज जो गाला नाइट होगी, फ्राइडे नाइट, जिसमें हम जाएंगे, विच इज़ बीइंग कॉल्ड द मिनी LSA. So there are lots to look forward to. Stay tuned. We'll see you next week. And as I said, do not forget to hit the subscribe button. Thank you.